توتانے دیو اجازت خدا سوال. جان ہے تو جہاں ہے، دل ہے تو آرزو ہے، کام تو ہوتے رہیں گے، ابھی جان تو بچائیے. میری طرف سے آپ سب کو پیارو خلوص بڑا آداب. میں ہوں روبی نساء خان. پروگرام کے آج کے شمارے میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے. وارم ویلکم ٹو آور شو. جی ہاں دوستو، کام تو ہوتے رہیں گے لیکن ابھی ضرورت ہے اپنی جان بچانے کی اس پینڈیمک سے، اومیکرون سے. اور اگر کوئی فیملی ممبر خدا نخواستہ کووڈ پازیٹیو ہے تو اس کو گھر کے ایک حصے میں الگ تھلگ رکھیے تاکہ اس کا انفیکشن کسی اور کو نہ لگ جائے. And we should take proper care of our elders because elders with serious medical conditions may develop severe illness. اور اس کے علاوہ جو کووڈ پازیٹیو ہے اس کی دیکھ ریکھ کے لیے گھر کے کسی ایک ہی سدسیہ کو متعین کرنا چاہیے ایز اے کیئر گیور. اینڈ کیئر گیور شوڈ آلسو ٹیک پریکاشنز اینڈ فالو SOPs. And patient should stay in well air conditioned room جس میں کراس وینٹیلیشن ہو with well ventilation room and windows of that room should be kept open so that fresh air will come in. اور اس کے علاوہ اگر گھر میں کوئی حاملہ خاتون ہے، پریگننٹ لیڈی ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو اس کووڈ پیشنٹ سے دور ہی رکھنا چاہیے. And help the person who is sick. Make sure that sick person is taking lot of fluids and adequate rest. ساتھ ہی جو یہ بیمار شخص ہوتا ہے، کووڈ افیکٹڈ پرسن ہے، the person should stay in single room with attached bath and toilet or separate washroom and toilet. اور اس کے علاوہ جو سوشل گیدرنگس ہے وہ should avoid during this pandemic season all social gatherings like marriage parties, condolences. And besides all this, never share your household items with COVID affected person like utensils, eating bowls, dishes, spoons, drinking glasses, beddings or anything else. اور ان سب چیزوں کے باوجود جو سب سے ایک اہم بات ہے وہ ہے کہ we should be free from anxiety and depression. کووڈ تو ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں، اور اب اس میں غمگین ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہمارا غمگین ہونے سے کووڈ چلا تو نہیں جائے گا. ایک نہ ایک دن ضرور انشاءاللہ تعالی یہ کووڈ چلا جائے گا، کیونکہ ہر تاریخ رات کی ایک روشن صبح ہوتی ہے اور وہ صبح ضرور آئے گی. وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی. انشاءاللہ تعالی وہ صبح ضرور آئے گی جب ہماری یہ سرزمین مکمل طور پر کووڈ فری ہو جائے گی. لیکن تب تک ہمیں پریکاشنز لینے چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیا کیا تدابیر کرنے چاہیے ہاؤس ہولڈ لیول پر جانتے ہیں آج کے پروگرام میں. آج ہمارے ساتھ ہے ایکسپرٹ ڈاکٹر سائمہ نندا. شی از سرجن اسپیشلسٹ میڈیکل آفیسر بٹمالو. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. ڈاکٹر سائمہ نندا جی، السلام علیکم، آداب. وعلیکم السلام. تھینک یو روبی جی. بہت بہت خوش آمدید آپ کا ہمارے پروگرام. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے بہت عزت افزائی دی اپنے پروگرام میں بلا کر. ویلکم ویلکم. ڈاکٹر صاحب، ہاؤ وی کین پریونٹ آور سیلوز فرام دس انفیکشن آف کووڈ-19 ایٹ ہاؤس ہولڈ لیول؟ دیکھیے روبی جی، ہاؤس ہولڈ لیول پہ ہی ہمیں پہلے کووڈ-19 کی پریونشن کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے ہم خواتین کا پروگرام کر رہے ہیں تو ہم خواتین ہی زیادہ گیدرنگس میں انوالو ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بھی بولا، میرجز ہو، برتھ ڈے پارٹیز ہو یا کنڈولنسز ہو، تو یہ سب گیدرنگس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ابھی کووڈ کی وجہ سے اوائڈ کریں، جتنا ہو پائے اتنا اوائڈ کریں. سیکنڈ ہے کہ اگر گھر میں کسی بھی فرد کو کوئی سمٹم آتا ہے کووڈ کا تو اس کو سب سے پہلے خود کو سیلف آئسولیٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ دوسروں میں انفیکشن نہیں پھیلائے گا. تو سیلف آئسولیشن از دا فرسٹ اسٹیپ. جب تک وہ ٹیسٹ کر پائے، جب تک ہم شیور ہو پائے کہ کیا اسے کووڈ ہے اور نہیں. تھرڈ چیز جو ہے، دیکھیے اب کووڈ ہے مگر ہمیں تو گھروں سے باہر نکلنا ہے، لوگوں کو شاپس میں جانا ہے یا آفیسز میں جانا ہے، یا ہمیں ایز لیڈیز بازار مارکیٹس میں فار امپورٹنٹ چیزیں جیسے گروسریز لانے تو جانا ہی ہے. تو ہمیں اس وقت SOPs کا پورا خیال رکھنا چاہیے. SOPs میں امپورٹنٹ ہے ماسک.
मैं एक चीज स्ट्रेस करना चाहूंगी यहाँ पे, आप लोगों ने भी देखा होगा मास्क तो पहनते हैं पर कभी डैंगल कर रहा होता है ऑन द चिन, कभी नाक खुली होती है, कभी तो पूरा मुंह नाक दोनों ही खुले होते हैं। जी जी। तो मास्क का एम है कि एयरवेज जो है यानी कि नोज और माउथ जो है दैट शुड बी कंप्लीटली कवर्ड बाय द मास्क। एक सील बन जाना चाहिए अराउंड द माउथ एंड द नोज, दैट इज द फंक्शन ऑफ द मास्क। सेकेंड इंपॉर्टेंट SOP जो है इज हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का क्या है, यू शुड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली व्हेनेवर आपके पास सोप वाटर अवेलेबल है फॉर 40 सेकेंड्स, और कहीं जैसे पानी अवेलेबल नहीं है तो हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स यूज कर सकते हैं दैट कंटेन मोर देन 60% ऑफ अल्कोहल। थर्ड SOP है सेफ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। जैसे हम मार्केट गए, मॉल्स गए, तो वहां पे हम प्रॉपर डिस्टेंस ऑफ सेफ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स मेंटेन करें, या ऑफिसेज में वैसी सीटिंग अरेंजमेंट रखें कि हम सेफ डिस्टेंस पे रहें। यानी 1 मीटर की दूरी जी जो है बेहद जरूरी। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ एनी पर्सन इन आवर फैमिली और इन फैमिलीज अफेक्टेड विद कोविड-19 और ओमिक्रॉन? जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट हो या हम कोई भी कोविड वेरिएंट की बात करें, तो खुदा न खास्ता अगर घर में कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं या उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। जब ही कोई पॉजिटिव आए तो उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं। या तो पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आया होगा। अच्छा। हाँ जी, और ऐसे पेशेंट की जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं वो 93% से ज्यादा होती है। इनको हम कैटेगराइज करते हैं एज एसिम्टोमेटिक ग्रुप। व्हाट्स द प्रॉपर लेवल ऑफ ऑक्सीजन? देखिए, प्रॉपरली तो हम अगर देखें नॉर्मल इंडिविजुअल में 98 भी 99 भी जाता है। अच्छा। पर हम कंसिडर करते हैं मोर देन 93% इज नॉर्मल फॉर एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक कैटेगरी में आता है, नॉर्मल नहीं है, दिस इज एसिम्टोमेटिक। ओके। फिर माइल्ड जो सिम्टम्स होते हैं, दे विल हैव माइल्ड कोविड सिम्टम्स लाइक उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का सोर थ्रोट हो सकता है, माइल्ड सा कफ, मगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट है देखना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है। Okay. फीवर माइल्ड सा लेस देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का, सोर थ्रोट हो सकता है, बॉडी एक्स जिनको हम मायल्जियास बोलते हैं, मगर इन माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में भी सैचुरेशन हैज टू बी मोर देन 93%। मतलब जो भी पेशेंट आप घर पे मैनेज करेंगे उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 93% रहनी चाहिए। उसके बाद आप उनको एज होम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। घर पे देखिए रूबी जी, जब हम एक पॉजिटिव पेशेंट को घर पे रखते हैं तो बहुत कंसर्न्स पैदा हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। डर लगता है कि कैसे रखें, और पेशेंट को भी डर रहता है कि मेरी वजह से किसी और को ना लग जाए। बिल्कुल। पेशेंट को सबसे पहले खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। एक प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, जैसे आपने भी बोला, विद अटैच्ड विद प्रॉपर वेंटिलेशन, विद अगर पॉसिबिलिटी है अटैच्ड वॉशरूम की तो अटैच्ड बाथरूम उसमें साथ, उसको सेपरेट बाथरूम होना चाहिए जहां बाकी फैमिली मेंबर्स यूज ना करें। इफ पॉसिबल, इफ नॉट देन वी नो फिर तो नहीं है। सेकेंड स्टेप जो है पेशेंट को जो खुद करना चाहिए, देखिए उसको, वो तो अकेला है सेल्फ आइसोलेट, पर उसके पास तो केयर गिवर को आना है, खाना लेके आना है या और कोई चीज लेके आनी है। तो जब वो इन कंटैक्ट विद केयर गिवर आता है तो उसको प्रेफरेबली बोथ पेशेंट एंड केयर गिवर शुड वेयर N95 मास्क इफ अवेलेबल। अगर अवेलेबल N95 नहीं है तो एटलीस्ट ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरूरी है दोनों। ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क? जी जी, दोनों को पहनना है, केयर गिवर को भी पेशेंट को भी पहनना जी। और यूटेंसिल्स, अब आप खवातीन जो हैं ज्यादा घबराती हैं कि अब डिस्पोजेबल में दे, बर्तन में दे, किस में दे। अगर आपके पास डिस्पोजेबल है तो आपके आराम के लिए आप दे सकते हैं, मगर ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप उनको अपने नॉर्मल बर्तन दे सकते हैं, मगर वो बर्तन आपको अलग रखने हैं, उनमें आपको बाकी बर्तनों के साथ इंटरमिक्स नहीं करने हैं। अच्छा। और उनको धोने का तरीका क्या है, जो केयर गिवर है उसको वो धोने के टाइम ग्लाउज, अगर उसके पास डिस्पोजेबल ग्लाउज है, वो पहन के नॉर्मल सोप वाटर के साथ वो यूटेंसिल्स, वो बर्तन धोने हैं, और अपने बाकी
घर वालों से वो दूर रखने हैं। और ये बर्तन धोने के बाद उसको वो प्रॉपर ग्लव्स निकाल के अपने हैंड्स फिर से सोप वाटर के साथ 40 सेकेंड्स धोने हैं, या तो फिर सैनिटाइजर से यूज करके सैनिटाइजर से वैसे ही रब करना है। और इम्पॉर्टेंट है जब आप हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं तो वेब स्पेसेस के अंदर, नेल्स के आगे पीछे, वो सारा कुछ आपको प्रॉपरली हैंड्स को वॉश भी और सैनिटाइज भी करना है। उसके बाद है जो मास्क अब पेशेंट यूज कर रहा है वो आपको ऐसे ही फेंकने नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड मास्क है। पेशेंट पॉजिटिव है तो मास्क इन्फेक्टेड है। तो मास्क जो है, ये जो 3 लेयर मेडिकल मास्क है डॉक्टर साहब, हाउ लॉन्ग पेशेंट कैन यूज दिस मास्क? ट्रिपल लेयर मास्क कैन बी यूज्ड फॉर 8 hours and N95 can be used for 72 hours. ट्रिपल लेयर मास्क जो है दैट कैन बी यूज फॉर 8 hours और उसके बाद उसको डिस्कार्ड किया जाना चाहिए, और अगर मास्क गीली हो जाए तो फौरन तब्दील करना चाहिए। जी, डिस्कार्ड करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। जी, डिस्कार्ड करने के वक्त मास्क शुड बी कट इनटू स्मॉल पीसेस, प्लेस्ड इन अ पेपर बैग and then it should be disposed by deep burial. इसके अलावा जो आपके पेशेंट के वेस्ट निकल रहे हैं, जैसे कि उसने बनाना खाया, बनाना पील है, वाटर बॉटल है कोई, जी, जो निकल रहा है वहां से, दैट शुड बी अगेन पैक्ड इन अ बैग, अ पेपर बैग, एंड सेंट फॉर या तो वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर। इसको डीप बरियल से हमने करना चाहिए, ऐसे सड़क पे नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि इट कैन फर्दर लीड टू स्प्रेड ऑफ द कोविड। दूसरी चीज जो है, पेशेंट को सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब पेशेंट अकेला है कमरे में तो उसको अपने सिम्टम्स को देखना है, इम्प्रूव हो रहे हैं या डिटोरिएट हो रहे हैं। अच्छा। हमने आजकल हर एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को फ्री पल्स ऑक्सीमीटर कोविड किट में प्रोवाइड किया हुआ है। तो उस पल्स ऑक्सीमीटर से उसको क्लीन फिंगर पे, नेल पॉलिश अगर लेडी है तो हटाकर उसको लगा के रखना है फ्यू सेकेंड्स पे, जब तक रीडिंग स्टेबल हो जाए, और देखना है कि पल्स रेट उस पे आती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी आ रही है। जी जी, ऑन द फिंगर, जी, ऑन द फिंगर, ऑन द index finger or in the middle, wherever he wants to place it. Okay. Second thing is he has to monitor his breathing rate. जैसे हम breathe करते हैं normally, हमारी 12 to 14 per minute breathing rate है। He has to see 1 minute में मेरी breathing rate कितनी है। अगर breathing rate बढ़ जाए, saturation कम हो जाए, fever with thermometer बढ़े, then he has to report. उनको फिर अपने कंसर्न्ड हेल्थ ऑफिसर, जिनका उसके पास नंबर होता है, कॉल करके बोलना है कि क्या अब मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत तो नहीं है, कोई और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत तो नहीं है। हाउ लॉन्ग इज दिस क्वारंटाइन जो पीरियड होता है, हाउ लॉन्ग इज क्वारंटाइन पीरियड जो शख्स हमने घर में आइसोलेट करके रखा होता है? जी जी, आज अब हमारे पास लेटेस्ट गाइडलाइंस आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो 5 जनवरी 2022 की गाइडलाइंस है। इसके अकॉर्डिंगली जो क्वारंटाइन पीरियड हमारा है, दिस इज 7 days आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव एंड 3 days विदाउट फीवर। इसके बाद आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू रीटेस्ट द पेशेंट अगेन। डॉक्टर साहब, व्हाट इज द होम केयर फॉर फैमिलीज एंड केयर गिवर पर्टिकुलरली? देखिए, केयर गिवर एक सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक है बिटवीन द हेल्थ सिस्टम एंड द कोविड पॉजिटिव पेशेंट। केयर गिवर पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन हो सकता है, हम केयर गिवर किसको बनाएं। प्रेफरेबली केयर गिवर वो होना चाहिए हु हैज बीन वैक्सीनेटेड, हु हैज रिसीव्ड बोथ द डोजेस ऑफ वैक्सीन। हमें प्रेग्नेंट लेडी को प्रेफरेबली केयर गिवर नहीं बनाना चाहिए, या एल्डरली को केयर गिवर नहीं बनाना चाहिए, या उसको केयर गिवर नहीं बनाना चाहिए जिसमें पहले ही कोई कोमॉर्बिडिटी है, मतलब कोई बीमारी पहले ही है, क्योंकि उनकी इम्यून लेवल्स पहले ही कम होती हैं, तो रिस्क ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन ज्यादा होता है, हायर होता है। अब केयर गिवर का है कि उसको पॉजिटिव पेशेंट के पास तो इन एनी केस जाना है ही है, उसको कोई चारा है नहीं विदाउट गोइंग देयर। सो उसको खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला, उसको जब भी वो पॉजिटिव पेशेंट के पास जाए, उसको ट्रिपल लेयर मास्क या N95 पहनना है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो केयर गिवर को याद रखनी है, जो पॉजिटिव पेशेंट के सिक्रीशंस है, मतलब थूक, सलाइवा है या बलगम निकलता है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, उसको उनके साथ इनडायरेक्ट कंटैक्ट नहीं आना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। जी।
थर्ड थिंग है केयर गिवर को कि जब भी वो यूटेंसिल्स बर्तन उसके धोते हैं या उसके बेड लिनन, पहले बेड लिनन जब ठीक करते हैं इट शुड नॉट बी शेक्ड, पहले कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट खुद अपना बेड ठीक करे। अगर अब वो नहीं कर पा रहा है या उनके टॉल्स होते हैं जी, या जी, उनके गारमेंट्स होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं etc. जी जी, वो वॉश करने के लिए जैसे मैंने बोला डिस्पोजेबल क्लाउज पहन के फिर वॉश करके विद सोप एंड वाटर और फिर अपने हैंड्स फिर से वॉश करके या सैनिटाइज करके। और केयर गिवर को एक और चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें खुद में सिम्टम्स तो नहीं आ गए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव पेशेंट का ख्याल रखते रखते वो खुद इन्फेक्ट हो सकता है, हो जाता तो है। उसको अगर लगता है कि खुद उसमें सिम्टम्स आ गए हैं तो ही शुड इमीडिएटली सेल्फ आइसोलेट हिमसेल्फ एंड गो फॉर टेस्टिंग, जिससे पता चले कि वो भी पॉजिटिव तो नहीं हुआ है। तो बाकी फैमिली के लिए जब एक कोविड पेशेंट हमारे घर में है, किसी के घर में है, तो रेस्ट ऑफ द फैमिली, हाउ रेस्ट ऑफ द फैमिली कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, पर्टिकुलरली if in any home, any family there will be any pregnant lady या छोटे छोटे बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, ऐसे ही बुजुर्ग जिनकी कोई सीरियस मेडिकल कंडीशंस होंगी, जिनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होगी। देखिए एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है क्योंकि इनको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है। आपने देखा होगा एल्डरली में इम्यूनिटी तो कम है, सेकेंडरली इनमें और बीमारियां हो सकती है, जैसे एल्डरली में एक से ज़्यादा बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन, खुदा न खास्ता कैंसर किसी को, और ऐसी बीमारियां। जी, तो इस वजह से क्या होता है इनका रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू जनरल जो यंग पॉपुलेशन है। अब अगर घर में हमारे एल्डरली है तो घबराना नहीं है हमें कि अब क्या करेंगे, अब इनको कुछ ना हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप है इनके SOPs फॉलो करना। एल्डरली पॉपुलेशन को नहीं चाहिए कि वो गैदरिंग्स में जाएं, ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जाएं। अगर अब बहुत मजबूरी है तो जैसे सेफ डिस्टेंस है वो सेफ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मास्क उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हैंड वॉशिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन जो मैं आपको बोलना चाहती थी, जब भी छींकना या खांसना है तो एक टॉवल से या एक टिश्यू से आपको अपना नोज माउथ कवर करना है। अगर नहीं है टिश्यू अवेलेबल तो ये एल्बो के बीच में ऐसे करके आप कवर करके यू कैन जस्ट स्नीज और कफ। और दूसरी चीज है एल्डरली के लिए वैक्सीनेशन जो हमें इम्यूनिटी देता है। हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था फॉर एल्डरली पॉपुलेशन। अभी आपको पता होगा जनवरी से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से हमने प्रिकॉशन या बूस्टर डोजेस स्टार्ट किए हैं फॉर मोर देन 60 विद कोमॉर्बिडिटीज। उन जो हमारे फैमिली मेंबर्स को जो भी एल्डरली हैं उनको लेके जाना चाहिए ताकि वो वैक्सीनेट हो जाए और उनकी इम्यून लेवल्स बढ़ जाए। और साथ ही साथ में जो उनकी अंडरलाइंग बीमारियां हैं उनको प्रॉपरली इस कोविड में मॉनिटर करना चाहिए, ब्लड शुगर्स, BP वगैरह बाकी चीजें, और उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली चलती रहनी चाहिए। इन सब बातों के साथ साथ सबसे अहम मुद्दा जो है वो डॉक्टर साहब स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री एंड डिप्रेशन फ्री एनवायरनमेंट जो हम सबको चाहिए। जी, तो कैसे मेंटेन करेंगे हम, कैसे रह सकते हैं स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री, और कैसे मैनेज करेंगे अभी अपने टेम्परामेंट्स को, अपनी नफ्सियात को, अपनी साइकोलॉजी को? देखिए कोविड एक ऐसी वबा फैली हुई है जिसमें ऐसा हम बोल ही नहीं सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रेस नहीं होगा। सिर्फ पेशेंट को ही नहीं जनरल पॉपुलेशन को भी स्ट्रेस है क्योंकि स्कूल्स ऑफ है, बिजनेस लोगों के बंद हुए पड़े हैं, बाकी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो स्ट्रेस होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे एक पॉजिटिव पेशेंट की कि उसको स्ट्रेस कैसा है। पॉजिटिव पेशेंट में डर लगा रहता है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली इन्फेक्ट हो जाएगी, या मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, या कुछ प्रॉब्लम होगी मुझे हॉस्पिटल लेना पड़ेगा, या तो ये भी फियर होता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं, ऐसे भी फियर होते हैं। ये स्ट्रेसेस धीरे धीरे ये फियर्स एंजाइटी में तब्दील होते हैं और एंजाइटी फर्दर टेक्स इनटू डिप्रेशन। सो वी हैव टू कंट्रोल द स्ट्रेस इनिशियली सो दैट वी डू नॉट गो इनटू अ कंप्लीट फुल फ्लेश्ड मेंटल डिसऑर्डर। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए रूबी जी सबसे पहले हमें चाहिए पेशेंट एंड केयर गिवर, इनकी एक कोलिजन होनी चाहिए। पेशेंट को थोड़ा खुद पे कंट्रोल आना चाहिए। ही शुड लेट गो। व्हाट डू वी मीन बाय लेट गो? लेट गो का मतलब होता है अगर मेरे में कोई नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं
मैं कोशिश करूं उनसे बाहर निकलने की, मैं कोशिश करूं कि मैं उनको अपने दिलो दिमाग से धीरे धीरे करके बाहर निकाल दूं, और साथ ही साथ मैं पॉजिटिव इमोशंस लाऊं कि सब ठीक होगा, मेरे साथ गलत नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें स्ट्रेस करना चाहिए कि ये एक फेजिक बीमारी है। फेजिक का मतलब है कि जैसे मैंने बोला, क्वारंटीन विल एंड इन 1 वीक एंड पेशेंट विल बी वेल। तो पेशेंट को खुद थोड़े को से ही फेजेस में जी जाएगी। पेशेंट को खुद को ही तसल्ली देनी चाहिए कि मैं 1 हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई विल बी वेल, आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट वेरी वेल। थर्ड चीज होती है हमारे को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या तो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज। Exactly. इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट है आप नमाज पढ़ लिए, कुरान शरीफ पढ़। भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जो आपको दिल का सुकून देंगी, आपके सोल थोड़ी को सी रिलीजियस एक्टिविटीज। जी कोई जैसे Creative- पोएट्री करना चाहता है Creative या activities. पेंटिंग या म्यूजिक या टेलीविजन। और एक और एक्टिविटी है जिसको हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। इनहेल एक्सेल। ये पेशेंट ये पेशेंट के लिए ऐसे। स्ट्रेस के लिए भी बिल्कुल स्ट्रेस के लिए भी अच्छा है, प्लस उसकी जनरल जो लंग्स के लिए फिजियोथेरेपी है वो भी यही है। वो डीप ब्रीथ करेगा, होल्ड करेगा फ्यू सेकेंड्स एंड एक्सेल, बाहर सांस रिलीज करेगा। दिस ही विल डू थ्राइस 4 times a day, so he will feel better also। और ये लंग्स की फिजियो भी है। अब केयर गिवर को क्या करना है? केयर गिवर का रोल है यहाँ पे कि उसको सपोर्ट देना है। He has to give a shoulder to the patient। शोल्डर का मतलब नहीं है कि वो उसके पास बैठे, हिम्मत, बट हौसला। उसको हौसला देना है। उसको कोशिश करना है कि वो पेशेंट को एक इमोशनल वेंट आउट दे दे। इमोशनल वेंट आउट का मतलब है कि पेशेंट बोल पाए। अगर कोई पेशेंट बहुत इमोशनली वीक होता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो बहुत डर जाती है, या कोई एल्डरली होता है वो बहुत डर जाता है, वो किसी से बात करने चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स, अपने डर खौफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जी, केयर गिवर को चाहिए कि वो उसको एक इमोशनल सपोर्ट दे ताकि उनके जो अंदर के खौफ डर है वो किसी हद तक कम हो जाए और स्ट्रेस एंजाइटी से वो थोड़ा सा बाहर आ जाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा केयर गिवर्स का या फैमिलीज का, अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि फैमिली मेंबर एक दूसरे से नेचुरली प्यार तो करते हैं, एक दूसरे का केयर भी करते हैं, इसलिए खुदा न खास्ता जब उनकी नॉलेज में ये आता है कि उनका कोई फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव है, ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव है, तो वो घबरा जाते हैं। इस सारी घबराहट में वो ये भूल जाते हैं कि ये जो पेशेंट है ये ऑब्जर्व करता है उनकी घबराहट को, उनकी इस नॉन प्लस होने को। तो जितना मामला संगीन हुआ भी नहीं होता है तो उनकी घबराहट से जो है पेशेंट जो है वो अधमरा हो जाता है। तो अभी जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे फैमिलीज के लिए और ओवरऑल सारे व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि अगर ऐसी हालत है अड़ोस पड़ोस में, फैमिली में, दोस्तों में, यारों में, उसको पहले से ही मशवरे देने शुरू करते हैं, मगर ऐसे देने होते हैं जैसे हम लास्ट ब्रेथ खुदा न खास्ता कोई ले रहा होता है, फिर उसको अलविदा कहना होता है इस जिंदगी को, इस दुनिया को, तो वैसे ही हम नसीहतें देने लगते हैं, जबकि हम उस वक्त कुछ उसको अच्छा सा मजाकिया तौर, ह्यूमर, सब कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उस बारे में बताइए। देखिए, कोविड पैंडेमिक जो है उससे हमें बचना तो है पर पैनिक फैलाना नहीं है। आजकल बहुत अफवाहें आती हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और अगर हमारी फैमिली लेवल पे खुदा न खास्ता किसी को कोविड हो जाता है तो हमें बड़ा साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच यूज करना चाहिए, ना कि वो जो अफवाहें आ रही हैं ऐसे वैसे, वो उन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर फैमिली में किसी को कोविड है तो जो प्रोटोकॉल है, SOPs है, आप वो मैनेज कीजिए, पेशेंट को मॉनिटर करिए, पेशेंट खुद अपने क्लिनिकल सिम्टम साइंस मॉनिटर करेगा, वो 1 हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको सहारा दीजिए, उसको प्रॉपर डाइट दीजिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे अपने आप को डिप्रेशन में लेने
देने से या पेशेंट को ऐसे डराने से तो कुछ होगा नहीं, उसके हालात और बिगड़ते जाएंगे। तो बेटर है कि हम इस सिचुएशन को प्रॉपरली डील करें, अंडरस्टैंड करें, ना कि स्ट्रेस बढ़ाए और पैनिक बढ़ाए। Is Omicron variant more dangerous for kids? बच्चों के लिए क्या ज्यादा खतरनाक है? जी, dangerous is a very difficult term to explain. Actually, Is it more severe rather, I can say? Omicron actually is a very high spreading variant. इसकी infectivity rates ज़्यादा हैं, क्योंकि infection rates ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लोगों में ये देखा जाएगा। मगर अब अल्लाह ताला का शुक्र है, जो स्टडीज हुई हैं बच्चों में जो देखा गया है, डिजीज इज माइल्ड, हॉस्पिटल एडमिशन रेट्स आर नॉट दैट हाई, और मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट्स उतनी ज़्यादा हाई नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, लोगों को इन्फेक्शन होता है, मगर डिजीज माइल्ड फॉर्म में है। डिजीज माइल्ड है जी। डॉक्टर साइमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूबी जी। Dear friends, protect yourself against COVID-19 and Omicron variant. Get vaccinated and stay up to date on COVID-19 vaccine. Don't forget to wear a mask. और बीमार लोगों की मदद कीजिए. Just help them to get grocery shopping items and fill their prescriptions and what else they may need. आज की मुलाकात बस इतनी। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज व नासिर।